Hello student, today we'll see partnership final account problem number 2. Already we have seen chapter number 1 partnership final account problem number 1. Okay, so we'll move to the problem number 2. This is your question, this is trial balance and this is your adjustment. Trial balance has a 1 effect and adjustment has a 2 effect. So we'll see this is a debit side of trial balance. See the date of debit trial balance 31st March 2019. So our balance sheet, trading account and profit and loss also will write 31st March 2019. This is debit side. So we have to post either in trading account debit side or profit and loss debit side or the balance sheet. ये इसमें से एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, नहीं तो असेट में जाएगा. Here credit side, either it will go trading account credit side or profit and loss credit side or the liability. Okay, so shall we start? So first we'll start with the stock, then stock will go, stock always comes factory, so this is a debit trading account. Building is a asset, so balance sheet asset side. Carriage is given, so we'll write trading account. Now there is a confusion ki if they have given carriage, that means we have to write trading account. If they have given carriage inward, that time also we have to write trading account. But if they have given carriage outward, so that will go profit and loss account. Because as I told you earlier कि what if carriage, see here I give the trick for you. अगर सिर्फ कैरेज है या कैरेज इनवर्ड है, so that will go trading account. बट कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है, सो ओ फॉर ऑफिस. सो ऑफिस का खर्चा हम कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इफ दे हैव गिवन कैरेज आउटवर्ड ओ, so carriage outward will go office expenses, that means profit and loss account. Okay, now factory insurance. So factory insurance trading account. If they have given only insurance, अगर उन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस दिया होता तो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट दे हियर क्लियरली मेंशन दिस इज अ फैक्ट्री इंश्योरेंस, सो ये फैक्ट्री का खर्चा है, वी हैव टू राइट ट्रेडिंग अकाउंट. Then postage, of course, profit and loss account. Bill receivable, debtors, this will go balance sheet asset side. Return inward. Now you get always confused, inward होगा. Purchase return, sales return रहेगा तो हमें समझ में आता है sales return minus from the sales and purchase return minus from the purchase. But ये जब ऐसे होता है ना, inward outward, so you get the confused. So what you have to do, if they have given debit side, this is the debit side, सो माइनस फ्रॉम द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में क्या दिया है देखो, क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स रिटर्न. आया समझ में? तो आपको ऑपोजिट माइनस करना है. अगर डेबिट में दिया है रिटर्न तो माइनस करना है क्रेडिट से, और क्रेडिट में तो आपको पता है सेल्स होता है, सो ऑपोजिट. अभी ये रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ पे क्रेडिट में दिया है तो हम माइनस करेंगे डेबिट से. डेबिट में क्या होता है? परचेस होता है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हम परचेस में से माइनस करेंगे. गॉट इट? ऑपोजिट. डेबिट माइनस फ्रॉम द क्रेडिट, दैट मीन्स सेल्स, एंड रिटर्न अगर क्रेडिट में दिया है तो माइनस फ्रॉम द डेबिट, डेबिट में परचेस होता है. ठीक है, सो ये ट्रिक याद रखनी है. नेक्स्ट वन, सो रिटर्न इनवर्ड विल गो trading account and will minus from the sales. Okay, now purchase, of course, trading account. ऑडिट फी, प्रॉफिट एंड लॉस. लूज टूल्स, दिस इज असेट. लूज टूल्स का मतलब छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं, छोटी छोटी मशीनरी होती है जिसे हम लोग मशीनरी भी नहीं बुला सकते, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कुछ छोटे छोटे, उसको बोलते हैं लूज टूल्स. सो दिस इज ऑल्सो असेट. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफकोर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सो दैट विल गो ट्रेडिंग अकाउंट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज अगर फैक्ट्री होता तो मोटिव पावर आता, फैक्ट्री में पावर, मोटिव पावर यूज करते, और हमारे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सपोर्ट ड्यूटी, लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, इफ इंपोर्ट ड्यूटी है तो ट्रेडिंग. इफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट कब करते हैं? जब फिनिश गुड होता है, फैक्ट्री से बाहर आता है हमारा गुड्स, और फिर हम उसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं. सो आफ्टर प्रोडक्शन, सो वॉट एवर द एक्सपेंसेस कम्स आफ्टर प्रोडक्शन, दैट वी हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और मैंने आपको ट्रिक भी दी थी, इंपोर्ट ड्यूटी कैसे याद रखना है. देखो, अगर ये आय, अगर ये आय है ना इंपोर्ट ड्यूटी, अगर ये आय का नीचे की लाइन जाएगी तो हमको टी दिखता है,
ठीक है. So T means trading account, तो import duty will go trading account. Then cash in hand, balance sheet, cash balance, balance sheet. Conveyance मतलब ही transport, so transport. Furniture, of course asset. Then salary, profit and loss. Rent, tax, tax किधर भरते, profit and loss में. Drawing, minus from the capital. But now this is the question, here they have given two capital, here one and here one. If you remember, we have seen in dissolution also, there are two types of capital, fixed capital method and fluctuating capital method. So this is called, what we can say, fixed capital method. फिक्स कैपिटल मतलब क्या, जहाँ पे हमें ये अकाउंट फिक्स्ड होता है, इनकी अमाउंट कुछ चेंज नहीं होती है साल भर, ये ऐसे ही रहेंगे. जो भी होगा, सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, लॉस होगा, ड्रॉइंग होगा, वॉट एवर, दैट ऑल वी आर सपोज टू डू एडजस्टमेंट इन दिस अकाउंट. सो हमको ये अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया, बिकॉज डिसोल्यूशन में मैंने अच्छे से समझाया ये आपको. ठीक है. सो दिस विल माइनस फ्रॉम हियर. Now we'll move to the, so this will go profit and loss, liability side my. Okay. So we'll now see here creditors liability, then this trading account, this balance sheet we have to write capital. Again same liability side लिखना है. Outstanding salary, they have not given in adjustment, so outstanding salary. ठीक है. So if only salary is given, see here we write profit and loss, but this is a future से related है, we have to pay, so tension है. Outstanding अभी तक pay करना है मितेश and मंगेश को, so this is a tension, so tension will go balance sheet liability. Bills payable, ये भी pay करना है future में, so balance sheet liability. Return outward, trading account minus from, ये credit में दिया है, so minus from purchase. ठीक है. so देखो इनर कॉलम में लिखना है यहाँ पर, this is a current account, here we have to open separate account. Done. Now posting done. Now this is the adjustment. So let's start adjustment. जहां जहां पे है टिक मार्क के लिए देखो मैंने पॉइंट दिए हैं, जो जो एडजस्टमेंट दी है वो इनर कॉलम में लिखना है. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें. सी फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, तो फर्नीचर को भी हमने किया है. आप ध्यान से देखो. ठीक है. जहां जहां पे मैंने ये सर्कल रखे हैं वो इनर कॉलम में लिखना है. Now we'll move to the next. This is a trading and profit and loss account. Balance sheet, see the date 31st March 19. Partners current account. Now here we have to open partners current account because they have given two accounts, one fixed capital and second current capital. So whenever they gives two accounts, we have to open current account. Okay? Now we'll start. पहला आइटम स्टॉक है, ट्रेडिंग है, तो पहले अब हम ट्रेडिंग की पोस्टिंग फटाफट खत्म कर देते हैं. सो डेबिट है, तो इतना याद रखना है, जो भी आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा. ठीक है. ओनली सेल्स रिटर्न जो हमको माइनस करना होता है वो इधर आएगा. सो स्टॉक, देन कैरेज, देन फैक्ट्री इंश्योरेंस, देन रिटर्न इनवर्ड. अब ये डेबिट में नहीं आएगा, ये माइनस फ्रॉम द सेल्स. अभी तक सेल्स की अमाउंट नहीं मिली है, जगह छोड़ो और राइट डाउन हियर रिटर्न inward. Now what we have to, yes, these manufacturing expenses, the purchase also done, purchase, then manufacturing expenses, then one, okay, finish. trading account we finish. सब check करो, trading account का हमने सब लिखे item. ठीक है. this one done, factory insurance done, return inward we minus from here, then manufacturing expenses, purchase, over. So trading account done. Now we'll move to the profit and loss. अब जो जो profit and loss में दिया है उसका फटाफट करते. So where is, yes, it's a postage. First item comes postage. No adjustment. So write outer column only. Then yes, audit fee. ध्यान से देखो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए. Audit fee. Then electricity charges, general expenses, export duty. No one has adjustment. Directly outer column. Then conveyance, and then rate, taxes, yes, salary is also there, so salary, then rate, taxes, done. So all debit side. if you notice, जो भी उन्होंने डेबिट में दिया है वो हमने डेबिट में ही लिखा है, तो बात किसकी हमें सुननी है, ट्रायल बैलेंस की. ठीक है. जो ट्रायल बैलेंस बताएगा कि डेबिट लिखो, तो डेबिट ही लिखना है. डन.
So we'll move to the बैलेंस शीट नाउ. अब बैलेंस शीट क्या है? फर्स्ट आइटम इज गिवन. सी दिस इज डन. ये सब हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग की पोस्टिंग कर चुके हैं हम लोग. अब सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड. सो बिल्डिंग वी हैव एडजस्टमेंट. सो राइट इनर कॉलम एक दो लाइन छोड़ो, एडजस्टमेंट है इसलिए. ठीक है. देन बिल रिसीवेबल, sundry debtors, then move here, loose tools, then cash in hand, बैंक बैलेंस, उसको ही कैश एट बैंक भी कहते हैं. देन फर्नीचर, ओवर, डन, हो गया हमारा. दिस वी हैव टू राइट करंट अकाउंट, वो बाद में देखते हैं. ये हो गया. सो बैलेंस शीट फिनिश. नाउ मूव टू द करंट अकाउंट. ड्राइंग दिया है ना उन्होंने यहाँ पे. सी हियर ड्राइंग, ये लाइबिलिटी नहीं, ये आदत से मजबूर हो गई. बैलेंस शीट लाइब नहीं, ऑलवेज हमेशा बाद में हम लोग जब नहीं देते करंट अकाउंट तो कैपिटल में से माइनस करते. बट हियर दे सेड यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट. So you have to open current account. So this is a debit side. So this is a debit side. Okay. डिसोल्यूशन में हमने देखा है, एडमिशन में हमने करंट अकाउंट देखा है. सो नो मोर एक्सप्लेनेशन. ठीक है. नाउ दिस इज फिनिश. नाउ विल मूव टू द क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग का पहले स्टार्ट करते. ट्रेडिंग के क्रेडिट. Yes, sales account. So right here sales account. Already we have written inward. Now we get the final amount. Trading done. Then और कुछ trading है. Yes, return outward. Credit दिया है but minus from the debit. So minus. ठीक है. So see here. We minus here. So directly you can write outer column amount लिख सकते हो, या बाद में भी जब closing के वक्त कर सकते हो. ध्यान से सिर्फ ये outer column में लिखना है. Then trading account also finish. Now we'll move to the profit and loss account. Profit and loss कुछ दिया है क्या item? नहीं दिया है. Now only balance sheet left. Liability. Credit side means liability. So Z 38,000 no adjustment. कैपिटल, दिस इज अ फिक्स कैपिटल, तो ये लिख दो. अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ना ड्राइंग माइनस करना है ना कुछ करना है. ये एज इट इज हमें बाहर लिखना है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड अमाउंट रखनी है उसकी साल भर. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी दे हैव गिवन. देन बिल्स पेबल एंड दिस करंट अकाउंट. अब ये करंट अकाउंट का ऑलरेडी हमने ओपन किया है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग. करंट अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड. सो विल राइट करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. डन. सो पोस्टिंग डन. आई होप सब हमने पोस्टिंग की है, कोई भी मिस आउट नहीं किया है. आप फिर से एक बार चेक करोगे कोई आइटम मिस आउट हुआ है क्या, वरना हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. मितेश एंड मंगेश शेयरिंग 3:1. इनका रेशियो दिया है. ये हमें कब काम आएगा? जब हम एनपी मतलब नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब. अभी फिलहाल तो इसका कोई काम नहीं है. ठीक है. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन. मतलब पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला है. किस पे? 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. लेकिन इतने जल्दी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा. ये करना पड़ेगा पहले. आफ्टर फिनिशिंग ऑल एडजस्टमेंट विल गेट द जीपी एंड देन विल कैलकुलेट. सो फिलहाल इसको भी साइड में रखो. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 23,700. चलो क्लोजिंग स्टॉक है, आंखों के सामने आपको इमेजिन करना है. स्टॉक होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जाएंगे हम. फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. अगर ओपनिंग हम डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग हम क्रेडिट में लिखेंगे. बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 23,700. एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. एक यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, तो दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं डेबिट में होगा. तो डेबिट में कहाँ होगा? ऑफ कोर्स बैलेंस शीट की डेबिट. बैलेंस शीट की डेबिट मतलब कौन सी होती है? असेट. सो विल राइट हियर. देन नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. ये भी हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. यस, दिस इज वेरी गुड सिंपल एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग है ऑडिट फी एंड कैरेज. आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना है फ्यूचर में, लेकिन अभी तो ऐड करना होगा. ठीक है. तो ऑडिट फी में 400 ऐड कीजिए. देन सेकेंड इफेक्ट ऑफ कोर्स पे करना है फ्यूचर में, टेंशन है, सो विल गो हियर. नेक्स्ट वन क्या दिया है? कैरेज भी आउटस्टैंडिंग है तो कैरेज में ऐड कीजिए. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है हमने कैरेज. देखो ये सब ऑलरेडी हमने लिखा है पोस्टिंग के वक्त. अब सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करनी है. सो ऐड 600. सो इट कम्स 2380. सो दिस इज ऑल्सो वी हैव टू पे. टेंशन है सो फ्यूचर में पे करना है. सो ऑडिट फी भी हमने लाइबिलिटी में लिखा है और कैरेज भी हमने लाइबिलिटी में लिखा है. दिस बोथ एक्सपेंसेस वी हैव टू पे इन फ्यूचर. डन. सो दिस इज ऑल्सो डन. Now it's very simple. Building is valued 46,500. So what we have to do?
बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500. सो whenever they use valued word, अगर आपने मेरा एडमिशन रिटायरमेंट देखा होगा तो उसमें मैंने यही कहा है, जब भी वैल्यूड वर्ड यूज करते हैं वी हैव टू राइट आउटर कॉलम फर्स्ट एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स वी कैन से डेप्रिसिएशन. सो दिस इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, कभी कभार वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट देते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है, कभी कभार वो ये देते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है, तो ध्यान से देखो. So 2000 depreciation. So same about furniture also, they have given 5% depreciation. So 5% furniture का भी निकालो, एक साथ दिए एडजस्टमेंट उन्होंने. So इसकी भी depreciation 5%, 64,000, it comes 3,200. So minus 60,800. Now every adjustment has a two effect. तो यहाँ पे हमने लिखा, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? Of course प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट? Nominal account. Debit the expenses and credit the income. So we have to write here. So make a total 5,200. Done. It's very simple. See कितने जल्दी फटाफट हो गए हमारे. Now provide interest on partners capital. बोला है कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करो, किस पे करो? पार्टनर्स कैपिटल पे. और कितना परसेंट करो? 2.5% करो. तो चलो ढूंढो पहले कैपिटल. अब यहाँ पे तो दो कैपिटल दिया है, एक करंट कैपिटल दिया है, एक फिक्स्ड कैपिटल दिया है. कौन से कैपिटल पे करेंगे? सो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फिक्स कैपिटल. ठीक है, फिक्स कैपिटल पे हमेशा हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो जी फिक्स कैपिटल पे करना है, लेकिन लिखना किधर है? करंट अकाउंट में लिखना है. नाउ टेल मी विच साइड इट्स कम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? चलो सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग चलाओ. We have to write where credit side of partners. Here how to calculate? 1,50,000 they have and 50,000 Mangesh has capital. So 2.5 upon 100. Why 100? Because they said in percentage we have to calculate. So whenever they said percentage we have to calculate upon 100. So it comes 37501250. ठीक है, फिर एक बार हमें कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स कैपिटल पे ऐड करना होता है, उस पे कैलकुलेट करना होता है. लेकिन अगर करंट अकाउंट ओपन किया है तो लिखना हमें करंट अकाउंट में होता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, सो हियर क्रेडिट, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. सी ये दोनों की टोटल करके मैंने लिखी 5,000. वाई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट? बिकॉज फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, उन्हें ये पे करनी है अमाउंट. ठीक है, 5,000 ये दोनों की टोटल. सो वी हैव टू राइट डेबिट साइड. देन now we'll move next. Goods 9,000 taken by Mangesh personal use. Personal use मतलब drawing है. So what we have to do? Goods है, जब भी एक गुड्स वर्ड आएगा, गुड्स मतलब क्या? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, जो भी होगा. सो गुड्स तो फैक्ट्री में होता है, तो एक इफेक्ट तो फैक्ट्री में जाएगा. अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें लिखा था गुड्स स्टोलन. सो गुड्स स्टोलन हो गया था, यहाँ पे गुड्स कौन लेकर गया है? मंगेश लेकर गया है. सो फर्स्ट इफेक्ट हमारा जाएगा ट्रेडिंग एंड सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल. सो सी ड्रॉइंग मंगेश ने 900 किया है. सो डेबिट मंगेश इज द रिसीवर, सो इट कम्स डेबिट साइड. ये तो ऑलरेडी पोस्टिंग में दिया था. ठीक है, सो हियर सी हियर ये ऑलरेडी पोस्टिंग में दिया था, तो ये ऑलरेडी उन्होंने ड्राइंग किया है, लेकिन एडिशनल ड्राइंग मंगेश ने और 900 का गुड्स लिया है. मंगेश इज द रिसीवर, सो विल राइट डेबिट साइड. हियर डेबिट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर 900. फर्स्ट प्रॉब्लम में था गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, तो चोर लेकर जाए या पार्टनर लेकर गए, गुड्स गोज आउट. ठीक है, सो विल राइट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 900. देन now next one, write off 1000 bad debts and then RDD 3%. ये मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले बैड डेट्स माइनस करना है, फिर जो अमाउंट बचेगी माइनस करके फिर हमें सन्ड्री डेटर्स करना है. सो लेट्स सी here सन्ड्री डेटर्स पहले माइनस करो 1000, देन वॉट एवर द लेफ्ट उस पे हमें 3% करना है एंड 1536, दिस बिकम्स 49664. इसकी वर्किंग नोट मैंने फर्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 में बताई है. पहले 52,200 में से 1000 माइनस करो, कितना बचेगा? 51,200. वो 51,200 पे 3% आपको ये कैलकुलेट करना है एंड देन इट कम्स, ऑल वी हैव टू माइनस, देन इट कम्स 49,664. डन.
So second effect, bad debts है, loss है, so we'll write here 1000. And next again RDD, this is also loss, so 1536. So both we have to write debit side because this is a loss for the firm. Then so now we'll move to the trading account. Now it's time to close the account. So let's close the account. Credit side heavy 1,98,000. So here also we have to write 1,98,000. Then we'll get the GP. Now if you remember, second adjustment still we have not done. वहां पे दिया था कि जो भी जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसका 1% हमें कमीशन देना है पार्टनर्स को. सो नाउ दिस इज टाइम टू गिव द कमीशन. सो वी गेट जीपी 99,000. 99,000 का 1% कितना आता है? 990. सो हर एक दोनों पार्टनर्स को 990 हमें देना है. सो सी बाय जीपी 990. जैसे उन्हें इंटरेस्ट मिला वैसे उन्हें जीपी सॉरी कमीशन पे उन्हें क्या मिला है? कमीशन मिला है 990 990. ठीक है. सो दिस इज अगेन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. जैसे इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. सो राइट हियर क्रेडिट साइड पार्टनर्स क्रेडिट साइड, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. सी हियर मेक अ टोटल 990 plus 990. It's become 1980. So this is commission given to the partner. So expenses for the firm. Now transfer this GP here, profit and loss credit side. Okay. See here, transfer here. Then we'll, sorry, here we have to write by mistakenly here. See, make a correction. We have to write here by. Okay. So see here, total. Now credit minus debit, we have to minus this all item, so we'll get net profit 63,684. Now it's time to get divide among the partners. Here debit trading account के debit में है, तो here will be a credit. ठीक है. Already they have given ratio 3:1. First adjustment, that is not actually adjustment, that is additional information. So 3:1. So divide this 3:1, we'll get the profit. Now close current account. First close Mangesh. See here, credit side is comes heavy, so credit minus debit, ये दोनों को हमें क्या करना है? माइनस करना है 20,161 में से. So we get the balance 17,061. Same about Mitesh. We'll get the balance same here. Now this balance will go, अब बचा ही क्या है? Balance sheet. So we'll go balance sheet here, current account. See, to account fixed capital and the fluctuating, that means current account. So this is called fixed capital account, जहाँ पे capital account का अलग separate होता है और current account का अलग account होता है. So we write here and now tally the balance sheet. Done. It's very simple. Make a practice, आपको आ जाएगा. Thank you so much. Have a nice day.